Good morning everyone. How are you all? I hope you all are fine. Today we are going to do New Gems English Reader by Ratna Sagar. Hi, I am Japneet and I'm conducting this session for class 4th. Let's start. This is the book we are going to study now. So today we are going to study lesson 7, A Scribe's Dream. It is a Birbal tale. Let's start lesson 7. A poor scribe finds himself in the clutches of a greedy moneylender who tries to trick him into paying for a dream. The scribe and his wife turn to Birbal, the famous minister in Akbar's court. How will the wise and witty Birbal solve their problem? So ये किसकी स्टोरी है? एक स्क्राइब की. स्क्राइब कौन होता है? जो बुक्स लिखता है या कोई डॉक्यूमेंट्स लिखता है उसे बोलते हैं स्क्राइब. अब उसने ड्रीम में कुछ पैसे बोरो करे हैं मनी लेंडर से और मनी लेंडर उसे फंसाना चाहता है, इसलिए वो बीरबल की हेल्प लेता है. और बीरबल कौन है? अकबर्स मिनिस्टर. यही स्टोरी हम पढ़ने वाले हैं. There was once a poor scribe in the city of Agra who copied other people's writing and books. He earned barely enough to support his family. But no matter how difficult it was, he and his wife always managed to feed themselves and their children. The scribe was proud of the fact that he had never borrowed a single paisa. We must never fall into the hands of moneylender, he often told his wife. तो एक पुअर स्क्राइब था जो सारे लोगों के डॉक्यूमेंट्स या बुक्स को रीराइट जो भी उन्होंने बोला है वो लिखता था और उससे वो अपने घर का सारा खर्चा चलाता था कमाकर. लेकिन उसके पास इतने ज्यादा पैसे नहीं होते थे, बस वो अपना गुजारा कर रहे थे कि वो अपनी वाइफ और अपने बच्चों का अपना सबका खर्चा चला सके. और उसने आज तक लाइफ में कभी भी कोई भी किसी से एक पेनी भी एक पैसा भी कभी बोरो नहीं किया था. और वो हमेशा अपनी वाइफ को बोलता था कि कहीं गलती से भी हम कभी बोरो ना करें, क्योंकि मनी लेंडर्स के हाथ में आना सही नहीं है, वो फायदा उठाते हैं बाद में. For if we do, we will surely be ruined. The scribe worried so much about his lack of money and his fear of borrowing that his worries even found a place in his dreams. One night he dreamt that he had borrowed 100 gold coins from the moneylender. He woke up in terror, thinking, 100 gold coins? How could I ever repay such a large sum? Still trembling from his nightmare, he woke his wife and told her about it. They talked quietly for a while and soon the scribe felt better. He fell asleep once more. अब उसको इतना ज़्यादा डर था कि उसकी ड्रीम में जो आया कि एक स्क्राइब ने मनी लेंडर से 100 गोल्ड कॉइन्स को बोरो कर लिया है. इतना ज़्यादा डर था कि वो ऐसे सपने देखने लग गया और वो रात में उठ के अपनी वाइफ को उठाता है और बोलता है कि मुझे आज सपना आया है कि मैंने ऐसे पैसे बोरो करे हैं. और फिर वो कुछ देर बात करते हैं और सो जाते हैं. The next day, as the scribe's wife drew water from the well at the end of the street on which they lived, she told her friends of her husband's dream. Imagine, she exclaimed, he dreamt that we had borrowed not one or two but 100 gold coins from money lender. तो सुबह उठकर जब उसकी वाइफ
पानी लेने जाती है पास वाले कुएं पर, वेल पर, जो उनके घर के पास ही होता है। वहां जाकर वो अपनी फ्रेंड्स को बोलती है, सोचो जरा, उनको सपना भी आया मेरे हस्बैंड को, और हमने मनी लेंडर से 1 गोल्ड कॉइन भी नहीं, 2 भी नहीं, हमने 100 गोल्ड कॉइन्स बोरो कर लिए सपने में। Her friends laughed with her. A few of them thought it was a very good story and repeated it to their husbands when they got home. The story spread, and a few days later it reached the moneylender's ears. अब सारी उसकी फ्रेंड्स, स्क्राइब की वाइफ की जितनी भी फ्रेंड्स थी वो उनको बताती है और वो सब हंसने लग जाते हैं। और उन सबको इतनी इंटरेस्टिंग लगती है ये बात कि उसको इतना डर है कि उसको सपना भी आ गया। तो यही सारी कहानी वो अपने हस्बैंड्स को भी जाकर बताती है और एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे से पास ऑन होते होते ये बात मनी लेंडर तक पहुंच जाती है। He laughed when he heard it, but his eyes began to glitter greedily. That evening he put on his turban and, picking up his walking stick, strolled over to the scribe's small house. अब जैसे ही मनी लेंडर के कानों तक ये बात पहुंचती है तो उसको बड़ी हंसी आती है पहले तो, और फिर उसके दिमाग में अलग अलग से ख्याल आने लगते हैं और उसकी आंखें लालच से, ग्रीडीली चमकने लग जाती हैं कि अब तो मैं उससे पैसे वसूलूंगा। तो वो शाम को अपनी टर्बन उठाता है और अपनी स्टिक उठाता है और धीरे धीरे चलता हुआ स्क्राइब के घर पहुंच जाता है। I have come, he announced to the nervous and worried scribe, to remind you of the money you owe me. और वहां जाकर वो स्क्राइब को बोलता है, मैं आ गया हूं और तुम्हें याद ही होगा कि तुमने मुझसे पैसे लिए हैं। Money? Shrieked the scribe in panic. I owe you? So स्क्राइब एकदम से हैरान परेशान हो जाता है और रोने वाली आवाज में कहता है, पैसे? मैं तुम्हें पैसे देने हैं मुझे? मैं तुम्हें ओ करता हूं पैसे? Yes, answered the money lender firmly. 100 gold coins. Surely you have not forgotten. और आगे से मनी लेंडर कहता है, हाँ 100 गोल्ड कॉइन्स देने हैं, याद है ना तुम्हें, भूले तो नहीं? 100 gold coins? Gasped the scribe in a falling voice, tottering to the nearest chair. और स्क्राइब डर जाता है और उसकी आवाज हकलाने जैसी हो जाती है कि 100 इतने ज्यादा पैसे मुझे देने हैं, और वो धीरे धीरे घबराते हुए पीछे की तरफ होता जाता है। टॉटरिंग टू द नियरेस्ट चेयर, पीछे पीछे जाते जाते एकदम चेयर के पास उसको इतना ज्यादा अंदर से धक्का लगता है कि मुझे 100 गोल्ड कॉइन देने हैं। वो डर जाता है और वो सोचता है मन में कि मैं ये कैसे भरूंगा पैसे। The scribe's wife, who had been listening from an inner room, came hurrying out. But it was only a dream, she cried. You cannot ask us to return money that has only been taken in a dream. और वहीं से उसकी स्क्राइब की वाइफ आती है भागी हुई और बोलती है, लेकिन वो तो ड्रीम था, तुम हमसे कैसे पैसे मांग सकते हो? वो तो हमने ड्रीम में बोरो करे हैं, हमने सच में बोरो करे होते तो हम तुम्हें रिटर्न भी करते। Money is money, said the money lender, and money borrowed must be returned. You will have to start tomorrow. I am a good man, a kind-hearted man, and so I shall not demand it all back at once. 1 gold coin a month will do, and then there will be the interest above that as well. With these words he stood up and left. और फिर आगे से मनी लेंडर कहता है कि पैसे तो पैसे हैं, जब तुमने बोरो करे हैं तो तुम्हें वापस भी करने पड़ेंगे और कल से ही वापस करना शुरू कर दो। लेकिन मैं एक अच्छा आदमी हूँ, काइंड हार्टेड हूँ, तो मैं तुम्हारे लिए इतना कर सकता हूँ कि तुम हर महीने 1 गोल्ड कॉइन दे देना,
और उसके बाद 100 गोल्ड कॉइन्स चुकाने के बाद उसका इंटरेस्ट भी तो है, वो भी तो देना है। और ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। The scribe began to moan softly. His wife sat down suddenly, her knees giving way beneath her. और स्क्राइब एकदम रोने जैसे हालात में हो जाता है, उसको सिसकी आने लगती हैं और उसकी वाइफ भी वहीं एकदम से अपनी नीज पे बेंड होकर बैठ जाती है, क्योंकि वो दोनों बहुत हैरान परेशान होते हैं कि अब हम क्या करें, 100 गोल्ड कॉइन्स कहाँ से लाएं जो हमने तो ड्रीम में बोरो करे थे और हमें एक्चुअल में चुकाने पड़ रहे हैं। They sat in silent despair. अब वो बैठ जाते हैं बिल्कुल शांति में, होपलेस हो जाते हैं कि हम क्या करें, कैसे करें, और सोच में चले जाते हैं। Suddenly, the wife had an idea. Husband, she said, sitting up straight, we must beg Raja Birbal to help us. Only he can save us from utter ruin. अब एकदम से उसकी वाइफ को आइडिया आता है और वो बोलती है हमें राजा बीरबल से बेग करना चाहिए, वो ही हमें इससे बचा सकते हैं। ये जितना भी ये मेस हो गया है, ये हमारे को बर्बाद करने की जो कोशिश करी जा रही है मनी लेंडर की तरफ से, इससे तो सिर्फ राजा बीरबल ही बचा सकते हैं। At this, the scribe sat up. I shall go to his house at once, he said. If anyone can save us, it is he. और इतने में ही स्क्राइब खड़ा होता है, कहता है हाँ मुझे राजा बीरबल के पास जाना चाहिए, उनके घर एक वही है जो हमें इन सब चीजों से बचा सकता है और कोई नहीं है। Birbal listened to the poor scribe's tale of woe. He brought out a bag of gold coins and emptied them onto a table. He counted out 100 and put the rest away. Next, he placed a large mirror in front of the coins. जैसे ही स्क्राइब बीरबल के घर जाता है और उन्हें सारी अपनी कहानी बताता है कि कैसे उसके साथ गलत हो रहा है, तो बीरबल क्या करते हैं, एक गोल्ड कॉइन का बैग लेकर आते हैं और उसे खाली करते हैं और उसमें से 100 कॉइन्स निकालकर टेबल पे रख देते हैं और बाकी सारे बैग में डालकर वापस रख देते हैं। और 100 कॉइन्स के पास वो एक मिरर लगा देते हैं, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो, सेम वैसे ही। हुजूर, हुजूर, the scribe said in a distressed voice, I did not come here to beg or to ask you to pay the money lender. Surely there is another way. और स्क्राइब उन्हें डिस्ट्रेस्ड वॉइस में, घबराई हुई आवाज में बोलता है, हुजूर मैं आपसे बेग ये नहीं करने आया कि आप पैसे दे दो मेरी जगह पर मनी लेंडर को, जरूर कोई और तरीका भी होगा ना, वो सोचिए। There is another way, Birbal answered with a smile. Be calm and go and call the moneylender here. Tell him his debt is about to be paid. तो बीरबल बोलते हैं शांत हो जाओ और जाकर मनी लेंडर को बुला कर लाओ और उसे बोलना कि जो उसका डेट है, जो उसके पैसे हैं, वो हम सब दे देंगे। Full of doubts, the scribe hurried to the moneylender's house with Birbal's message. The moneylender smiled when he heard the message and got up at once to accompany the scribe. और जो स्क्राइब होता है वो बड़ा निराश सा और बहुत सारे क्वेश्चंस मन में लिए हुए भागता हुआ जाता है मनी लेंडर के घर उसको लेने के लिए और बोलता है कि बीरबल ने मैसेज दिया है, आप आ जाओ और आपके पैसे सारे आज ही आपको मिल जाएंगे। मनी लेंडर भी बहुत खुश होता है कि मेरे को तो पैसे मिलने वाले हैं, और जैसे वो मैसेज ये सुनता है वो स्क्राइब के साथ फटाफट बीरबल के पास आ जाता है। When they arrived at Birbal's house and were shown in, the moneylender saw the pile of gold coins on the table. He smiled and smiled, unable to take his eyes off them. The mirror behind the coins made the pile look larger and more glittery. और जैसे ही मनी लेंडर बीरबल के घर आता है
वो देखता है कि वहां पर एक पूरा ढेर, एक पाइल ऑफ गोल्ड कॉइन्स टेबल पे रखा हुआ है और वो चमचमाते गोल्ड कॉइन्स को देखकर उसके मुंह पर इतनी मुस्कान आ जाती है कि वो स्माइल ही करता रहता है। और बीरबल ने उसके पीछे मिरर रखा होता है तो इसलिए वो गोल्ड कॉइन्स और ज्यादा चमक रहे होते हैं और ग्लिटरी लग रहे होते हैं। So the scribe borrowed 100 gold coins from you in his dream, did he? आगे से बीरबल पूछता है मनी लेंडर से, तो स्क्राइब ने तुमसे 100 गोल्ड कॉइन्स लिए हैं ड्रीम में, है ना? That is so, replied the money lender, never taking his eyes off the coins on the table. वो बोलता है हाँ, और बोलते हुए उसकी जो आंखें होती हैं वो गोल्ड कॉइन से हटती नहीं है। वो इतने चमचमाते गोल्ड कॉइन्स होते हैं, उसके मन में इतना लालच भरा होता है कि वो उनको देखता ही रहता है कि ये गोल्ड कॉइन्स तो मेरे होने वाले हैं। Well, said Birbal, you may take all the coins in the mirror. The real coins belong to me, but all those in the reflection are yours in return for the dream loan. तो बीरबल आगे से कहते हैं तुम सारे कॉइन ले सकते हो, लेकिन वो वाले जो मिरर में हैं, क्योंकि जो ये टेबल पर हैं ये तो मेरे हैं, और जो मिरर वाले हैं वो तुम्हारे हैं, क्योंकि ड्रीम में तुमने लोन लिया था तो रिफ्लेक्शन भी तुम्हारी है। The money lender knew that he met his match. Without a word, he returned and left. Never again did he try to cheat anyone in the city of Agra. और मनी लेंडर को पता चल गया कि हाँ, मुझे अपनी टक्कर का कोई आदमी मिल गया है। उसको मजा चखा दिया कि ड्रीम के पैसे तू मांग रहा है वापस, ये ले, अब तू रिफ्लेक्शन वाले पैसे ले और जा यहाँ से। और आगे से मनी लेंडर ने कभी भी ऐसे धोखा किसी के साथ नहीं किया, उसे अपना लेसन मिल गया। Now students, we are going to do difficult words of the chapter in the notebook. Scribe, greedy, moneylender, barely, strolled, gasped, tottering, despair, woe, accompany, utter, terror, borrowed, nervous, worried, announced. Now moving on to word meanings. Scribe, a person who copies books and writings. तो जो भी डॉक्यूमेंट, बुक्स, राइटिंग्स, लेटर्स कुछ भी होते हैं वो उनको कॉपी करता है। Strolled, here went to, चलकर जाना कहीं पर भी। Debt, sum of money that is owed, किसी से कर्जा लिया है, कोई पैसे लिए हैं, that is debt. Utter ruin, here complete poverty, बुरी तरह से गरीबी आ जाना। Despair, to lose all hopes, hopeless हो जाना कि अब तो ये चीज नहीं हो पाएगी, मैं कर ही नहीं पाऊंगा। Nightmare, a frightening or unpleasant dream, गंदा सा सपना, बुरा सपना। Gasped, catching one's breath or choked, एकदम सांस अटक जाना। Squeaked, make a high pitched sound or cry, तेज तेज की चीख चीख के रोना। Now you have to do make sentences. The same words I have given for word meanings, you have to do them as you make sentences so that you can use them in your daily life also. Thank you everyone for watching the video. I hope you have understood the chapter. If not, watch it again, listen to the story carefully. This is a very interesting story. Bye bye, take care, stay safe, stay healthy.